Good morning, students. In this video, we are going to solve exercise question and answer of chapter 4 Materials, Metals and Non-Metals. Let's start solving the exercise question and answer of chapter 4. Question number 1. Which of the following can be beaten into thin sheets? The beaten into thin sheets, that means they will show the malleability property. Option A, zinc. Option B, phosphorus. Option C, sulfur. Option D, oxygen. The right answer is option A, zinc, because all the given options, that is phosphorus, sulfur and oxygens, are non-metals. Moving to our next question. Question number 2. Which of the following statements is correct? नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए, all metals are ductile. All metals are not ductile because mercury is a metal which is liquid at room temperature, so cannot be drawn into wire. That means it cannot show the ductility property. So the option A is incorrect. Option B, all non-metals are ductile. Here all non-metals are not ductile is a right answer. Option C, generally metals are ductile. ऑप्शन डी, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. जो सम नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं. बट द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. जनरली वर्ड यूज करेंगे. जनरली जब हम कब यूज करते हैं? जब एक या दो में एक्सेप्शन है अपने पास में, तो हम यूज क्या करते हैं? जनरली वर्ड्स. ऑल मेटल्स आर डक्टाइल ये नहीं बोल सकते हम, क्योंकि एक्सेप्शन है हमारे पास मर्करी मेटल जो कि लिक्विड है स्टेट में. तो लिक्विड स्टेट से आप शीट वायर्स कैसे बना सकते हो? सो दे कैन नॉट शो द डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. Moving to our next question. Question number 3. Fill in the blanks. First question. Phosphorus is a dash non-metal. Phosphorus is a very reactive non-metal. B. Metal are dash conductor of heat and dash. The metal are good conductor of heat and electricity. C. Iron is dash reactive than copper. Iron is more reactive than copper because you will see in activity series the iron will come first, then the copper will. D. Metal react with acid to produce dash gas. जब metals की reactions होती है acid के साथ, they will produce the hydrogen gas. Moving to our next question. Question number 4. Mark T if the statement is true. Mark F if it is false. First question. Generally non-metals react with acids. यहाँ पे क्या आना चाहिए था? This statement is false because generally metals react with acid. Non-metals does not react with acids. Second, sodium is a very reactive metal. True statement. Third, copper displaces zinc from zinc sulfate solution. This statement is false because copper is less reactive than zinc. Question number 4. Coal can be drawn into wires. This statement is false because coal is a non-metal and non-metal can show the non-ductile property because they are brittle in nature. Moving to our next question. Question number 5. Some properties are listed in the following table. Distinguish between metals and non-metals on the basis of these properties. Property 1. Appearance. In a metal, appearance will be the lustrous and the non-metals have show the dull appearance. Second, hardness. Metal should be hard in nature and non-metal should be soft. Third, malleability. Metals are malleable in nature
and non-metals are non-malleable in nature. Fourth, ductile या ductility property. Metals are ductile, non-metals are non-ductile. Fifth, heat conduction. Metals are good conductor of heat and non-metals are bad conductor of heat. Sixth, conduction of electricity. Good conductor of electricity are the metals and bad conductor of electricity are the non-metals. Moving to our next question, question number 6, give reason for the following. आप लोगों को यहाँ पे क्या देने हैं, रीजंस देने हैं. A, aluminium foils are used to wrap food items. एल्यूमिनियम की जो फॉइल्स होती है, शीट्स होती हैं, आप यूज करते हो फूड आइटम्स को रैप करने के लिए, तो क्यों यूज करते हो? आंसर, एल्यूमिनियम इज हाईली मैलेबल. जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, हाईली मैलेबल है, इजिली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है. एंड इट can be easily be bitten in sheets to make its foil for wrapping purpose. Wrapping purpose के लिए जो एल्यूमिनियम है वो highly malleable metal है, तो वो easily sheets में convert हो जाता है. And it is also soft and does not react with food items. और ये soft metal है और food item से react नहीं करता है. That is why aluminium foil are used to wrap food items. इसीलिए aluminium foil को food items को wrap करने के लिए use किया जाता है. B, immersion rods for heating liquids are made up of metallic substances. Answer, जो immersion rods होती हैं, जो आप लोग हीटर वगैरह यूज करते हो, गीजर यूज करते हो पानी गर्म करने के लिए, तो उसमें जो रॉड्स होती हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, मेटालिक सब्सटेंस से बनी होती है. तो मेटालिक सब्सटेंस से क्यों बनी होती है? आंसर, इमर्जन रॉड्स मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंस बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्यों बनी होती हैं? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. दे गेट हॉट वेरी सून ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वार्म द वाटर. ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं जब इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है और वाटर को भी जल्दी वार्म कर देते हैं. सी, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. कॉपर जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाता उसके सॉल्ट सोल्यूशन से? आंसर, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. जो कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो वो कैसे डिस्प्लेस करेगा उसको? ठीक है, तो आंसर, ओनली अ मेटल of higher the reactivity can displace the metal of lower reactivity from its salt solution. You already know that the metal of higher reactivity, वो metal जिसकी reactivity बहुत ज़्यादा है, वो displace कर सकता है वो metal को जिसकी reactivity कम है उसके salt solution में. So the copper cannot displace zinc from its salt solution. तो copper यहाँ पे zinc को displace नहीं कर पाएगा ZnSO4 सोल्यूशन से. जिंक सल्फेट सोल्यूशन से जो कॉपर है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. डी, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन. जो सोडियम और जो पोटेशियम है वो कैरोसिन में क्यों स्टोर किए जाते हैं? आंसर, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल. जो सोडियम है, जो पोटेशियम है, वो क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. They can catch fire even when they come in contact with AO. They can क्या करते हैं, catch fire. ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं. So they are stored in kerosene. तो इसीलिए इनको क्या किया जाता है, कैरोसिन में स्टोर किया जाता है एंड प्रिवेंट किया जाता है कि वो एयर के कांटेक्ट में ना. Moving to our next question, question number 7. Can you store lemon pickle in an aluminium utensils? Explain. क्या आप लेमन पिकल को एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में स्टोर कर सकते हो? आंसर, नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल and metal readily react with acid to produce a hydrogen. You can see the chemical property of the metal where you can study that the metal react with acids, they will produce the hydrogen gas with the pop sound. ठीक है, वहां पे आपने क्या पढ़ा था कि जो मेटल है वो एसिड से रिएक्ट करते हैं एंड दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन गैस.
ठीक है, और वो पॉप साउंड के जैसे निकलती है। तो व्हेन एल्यूमिनियम्स कम इन कांटेक्ट विथ लेमन, जैसे ही वो एल्यूमिनियम लेमन के कांटेक्ट में आएगा, और लेमन इज अ एसिड विच कंटेन्स अ सिट्रिक एसिड, वो कौन सा एसिड कंटेन करता है? सिट्रिक एसिड। तो लेमन, हियर द लेमन इज बिहेव एज अ एसिड and aluminum is behave as a metal, so they will react and they will produce a hydrogen gas and the pickles will be spoiled. तो जो pickles होंगे वो क्या हो जाएंगे? spoiled हो जाएंगे। Moving to our next question, question number 8. Match the substances given in column A with their uses given in column B. ठीक है, यहाँ पे आपको कॉलम ए एंड कॉलम बी दिया है। कॉलम ए में मेटल्स के नेम दिए हैं एंड कॉलम बी में उसके यूजेस दिए हैं। ठीक है, तो गोल्ड इज यूज एज अ ज्वेलरी, ठीक है, आयरन इज यूज इन मेकिंग मशीनरी, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर रैपिंग फूड आइटम्स, कार्बन इज यूज एज अ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल, कॉपर इज used in making electric wire because they can very ductile, mercury is used in thermometer because at the room temperature they will present at a liquid state, that's why they will use in thermometer. Moving to our next question, question number 9. What happens when? क्या होगा? Option A, dilute sulfuric acid is poured on a copper plate. अगर एक कॉपर की प्लेट है, उसमें आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो तो क्या रिएक्शन होगी? आंसर, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव। जो कॉपर है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, वो रिप्लेस नहीं कर सकता सल्फ्यूरिक एसिड का H, that means hydrogen, because the formula of sulfuric acid is H2SO4, so they cannot replace the H from H2SO4 to make CuSO4 because the copper is less reactive than hydrogen. B, iron nails are placed in copper sulfate solution. अगर आपने आयरन नेल्स प्लेस कर दी हैं, बीकर के अंदर डाल दी हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो क्या रिएक्शन होगी? आपको वर्ड इक्वेशन में इसको शो करना है। आंसर, द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज मोर देन कॉपर। जो रिएक्टिविटी है आयरन की वो कॉपर से ज्यादा है, मतलब कॉपर, आयरन ऊपर आता है एंड उसके नीचे क्या आता है? कॉपर आता है। सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो सो आयरन जो है क्योंकि विल बी अ मोर रिएक्टिव, so they can displace copper from a copper sulfate solution. So the equation is copper sulfate, the formula of copper sulfate is CuSO4. CuSO4, it is a blue colored solution, react with iron. Iron nails किसकी बनी होती है? आयरन की बनी होती है। React with irons, they will produce FeSO4. किसका सोल्यूशन बन रहा है यहाँ पे? FeSO4, फेरस सल्फेट का। एक्सचेंज क्या हुआ उसमें? आयरन इज गो टू दैट पोजीशन एंड कॉपर इज दैट गो टू दिस पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हुआ। हियर द रिएक्शन which take place is a displacement reaction. Okay, the iron will displace the copper from a copper sulfate solution and will form the FeSO4 plus copper. ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपर का ब्लू कलर है वो चेंज हो जाएगा किसमें? ग्रीन कलर में, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है? फेरस सल्फेट फॉर्म हुआ है। ठीक है, NCU जो कॉपर है वो कौन से कलर का है? रेड कलर का है। ठीक है, सो द आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर from copper sulfate solution and brown coating of copper is deposited on the iron nails. जो iron nails है उसके ऊपर brown कलर की कोटिंग आ जाएगी। वो किसकी होगी? आयरन सल्फेट की। Also the blue color changes into green, और जो ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगा, क्योंकि वहां पे किसका फॉर्मेशन हो गया है? फेरस सल्फेट का। एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट? FeSO4. Moving to our next question, question number 10. Saloni took a piece of burning charcoal and collect the gas evolved in a test tube.
सलोनी ने क्या हुआ है, एक बर्निंग चारकोल लिया है। बर्निंग चारकोल, चारकोल इज अ टाइप ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड कलेक्ट द गैस इवॉल्व इन अ टेस्ट ट्यूब। बर्निंग चारकोल है, उसकी जो गैस है उसको कलेक्ट कर लिया उसने टेस्ट ट्यूब में। ए क्वेश्चन, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस? वो नेचर कैसा पता करेगी कि गैस का नेचर क्या है, क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। आंसर, व्हेन चारकोल इज बर्न्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। जब अपन चारकोल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो क्या निकलता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। दिस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अगर लाइम वाटर लेके जाओगे, लेमन वाटर लेके जाओगे, तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको मिल्की कर देगा। मतलब उसका जो अपीयरेंस होगा वो मिल्की हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा, ठीक है, वो साफ आपको नहीं दिखेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। इट कैन ऑल्सो बी टेस्टेड बाय रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से भी आप उसको टेस्ट कर सकते हो। द सोल्यूशन ऑफ गैस टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। जो सोल्यूशन होगा गैस का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ब्लू लिटमस से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज एसिडिक इन नेचर। सो आप क्या बोल सकते हो, जो उसने गैस वहां पे कलेक्ट करी थी टेस्ट ट्यूब में, वो किस नेचर की, एसिडिक नेचर की है, क्योंकि उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया है। B. Write down the word equation of all the reactions taking place in this process. अब आपको क्या करना है, इसका वर्ड इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को उसने बर्न किया, और बर्निंग कंबशन किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। दे विल गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो हियर वी विल राइट द वर्ड इक्वेशन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड पास इनटू द लाइम वाटर, दे विल टर्न मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, दे विल टर्न्स द लाइम वाटर इनटू मिल्की। क्वेश्चन नंबर 11, वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप विथ हर मदर। एक दिन क्या हुआ, जो रीता है वो ज्वेलरी शॉप गई अपनी मदर के साथ में। हर मदर गैव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश, ठीक है। तो ज्वेलर जो होता है उसको उसने क्या किया, अपनी ओल्ड गोल्ड की ज्वेलरी दी उसने पॉलिश करने के लिए। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक, दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। जब नेक्स्ट डे वो उसको लेने गई तो उसमें उसने देखा कि जो ज्वेलरी का जो वेट है उसमें क्या है, थोड़ा सा कम है। कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट? आपको क्या करना है, रीजन बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। आंसर, द गोल्ड ज्वेलरी इज डिप्ड इनटू अ एसिडिक सोल्यूशन कॉल्ड एक्वा रेजिया। जब गोल्ड ज्वेलरी को आप पॉलिश करवाने के लिए ले जाते हो तो ज्वेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया किसका सोल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एंड नाइट्रिक एसिड का। उसमें वो गोल्ड ज्वेलरी को डिप करते हैं पॉलिशिंग करने के लिए। ऑन डिपिंग द गोल्ड ज्वेलरी इन द एसिड सोल्यूशन, द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिसॉल्व एंड द इनर शाइनी लेयर अपीयर, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही वो उसमें डिप्ट करते हैं गोल्ड ज्वेलरी को एसिडिक सोल्यूशन में, तो जो गोल्ड ज्वेलरी की आउटर लेयर होती है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और इनर लेयर क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। दिस कॉजेज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। इस कारण क्या होता है, स्लाइट लॉस हो जाता है गोल्ड ज्वेलरी का